परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। उस परम सत्ता को नमन करते हुए मैं परम श्रद्धेय स्वामी जी और आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सभी जो हमारे यूके से आए हुए कर्मयोगी भाई बहन हैं और मातृतुल्य पितृतुल्य हमारे अभ्यागत वृंद हैं, उन सभी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और पूज्य साध्वी जी को मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे गीता की कक्षा के लिए अवसर प्रदान किया। और इट इज़ वेरी great opportunity for all of us that we are learning Gita, we are listening Gita, reciting Gita, because Gita is a holy book, a religious book that comes from the lotus-like mukh of Bhagwan Vishnu or Lord Krishna. So now we are starting. A brief introduction of Gita. We all know that Bhagavad Gita is also called Gita. So Gita means song. गीता मीन्स सॉन्ग जो गाया जा सकता है, वो गीता है. एंड वी सी दैट देयर आर वर्सेस इन गीता, 700 वर्सेस इन गीता. सो वर्सेस इज अ छंदोमय रचना होती है ये, द कंपोजिशन इन द वर्सेस फॉर्म दैट वी कैन सिंग दैम. सो गीता इज अ सॉन्ग, पर किसका? देयर इज अ वर्ड भगवत. भगवत इज अ वर्ड गो टू गॉड. तो गॉड के जो शब्द हैं, गॉड का जो गान है, वो गीता है. तो द वर्ड ऑफ गॉड, द सॉन्ग ऑफ गॉड, वी कैन इट हैज बीन इंटरप्रेटेड इन several ways. और we all know that Shri Krishna preached to Arjuna in the battlefield of Kurukshetra, and we all are Arjun in our life and facing a lot of problems, and there is a solution in the form of Gita for in nowadays also. So Gita is a life learning subject where we can find solutions of our problems. So Gita is a fruitful conversation between four characters: Dhritarashtra, Sanjay, Arjun and Shri Krishna. Or this conversation covers a range of topics including philosophical questions, ethical dilemmas and moral duties. जो हमारे नैतिक दायित्व हैं, जो हमारे दार्शनिक तत्व हैं, जो जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन सब पर गीता प्रकाश डालती है. तो ये भले ही एक कन्वर्सेशन हो, इसमें डायलॉग्स हों, लेकिन उनमें प्रश्न भी हैं और उत्तर भी हैं. तो गीता is a part of famous epic Mahabharata written by Maharshi Vedavyasa. Mahabharata also has 18 parvas. Gita has 18 chapters, and Mahabharata, that is written by Maharshi Vedavyasa, also has 18 parvas. And there, in which the sixth parva is Bhishma Parva. भीष्म पर्व में 124 चैप्टर्स हैं, 124, and there is 23 to 40 chapters are in the form of Gita. So we can say that Gita is preached by Lord Krishna and written by Maharshi Vedavyasa. And there is a legend also that Shri Ganesha Likhita is a sentence that वेदव्यास ने इसको नरेट किया और गणेश ने लिखा और श्री कृष्ण ने इसको प्रीच किया in the battlefield of Kurukshetra. So that was the brief introduction about the Bhagavad Gita, and the next we go through content of Gita. There are 18 chapters, 700 verses, and there are 4 characters: Dhritarashtra, Sanjay, Arjun, and Krishna. Or in 7,000 shlokas are divided in 4 characters, where Dhritarashtra say only single verse: Dharma kshetre kurukshetre samaveta yuyutsavah. The only single verse is come from Dhritarashtra. And then Sanjay narrates what is happening in the battlefield of Kurukshetra, Dharma kshetra. So 41 verses come from Sanjay. And Shri Krishna
जो सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, सभी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं, सभी जो दार्शनिक तत्व हैं उनको समझा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा हमें श्लोक मिलेंगी, तो वो है 5074। एंड अर्जुना हु इज क्वेश्चनिंग, और अपने बार बार जो उनके मन में समस्याएं पैदा हो रही हैं उनको वो दूर कर रहे हैं, तो उनकी ओर से 84 श्लोकास हमें देखने को मिलते हैं। तो इट वॉज द ब्रीफ समरी। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ गीता। गीता का क्या महत्व है, क्या महात्म्य है हमारे जीवन में? वी ऑल नो दैट गीता इज अ होली बुक, is a religious book, but what is the difference? There are a lot of scriptures related to religion, but we all know about the Gita. What's the reason? So we can say that Gita is the essence of Vedas and Upanishads. Essence, सार तत्व है वो सभी दर्शनों का, उपनिषदों का और वेद का। तो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स अबाउट इट। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। तो दिस वर्स इज अ मेटाफर, एक रूपक का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। वेयर द ब्यूटीफुल थिंग इज दुग्धम गीतामृतम महत्। गीता इज अ नेक्टर लाइक मिल्क, नेक्टर अमृत। देवता और असुर दोनों अमृत के प्यासे थे, हम मनुष्य हैं, हमारे लिए वो ज्ञान ही अमृत है जो साक्षात हमें विष्णु मुख से प्राप्त हुआ है। तो कहा कि सर्वोपनिषदः गावः, ऑल द उपनिषदास आर cows. The son of the cowherd Krishna is a milker. जो दूध निकाल रहे हैं वो कौन है? कृष्ण है। जो गाय है वो कौन है? उपनिषद है। और पार्थ अर्जुन का नाम है। अर्जुन वो है जो कि बछड़े के रूप में उस दूध को सबसे पहले पीने वाला है। बट वी आर ऑल्सो ड्रिंकर्स, हम भी उसको पी रहे हैं। तो कहा कि कौन उसको पीता है? सुधी ही, जो प्यूरिफाइड इंटेलेक्ट का मालिक है, जिसके पास एक प्योर बुद्धि है, प्योर विजडम है, वो भी उसका पान कर रहा है अर्जुन के साथ। अर्जुन वॉज द फर्स्ट, बट वी आर ऑल्सो ड्रिंकर्स नाउ। सो दुग्धम गीतामृतम महत्, गीता इज अ नेक्टर लाइक मिल्क। तो महर्षि वेदव्यास says that गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यहि शास्त्र विस्तरहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता, कि there is no need to go through any other scriptures in detail. Gita is a sar, Gita is the essence of everything. So if we read it, if we recite it, if we listen it or learn it, it make us complete. और जो सुप्रीम अल्टीमेट जो पावर है, जो अल्टीमेट रियलाइजेशन है, उससे ये हमें रूबरू कराती है, उससे ये हमें मिलाती है। सो we should learn Gita, and now we are learning. So we all are drinkers, and we are very lucky also that this religious book we are reading. And now there was a subject, who is Sthit Prajya. Maybe you all know about this Sthit Prajya. This is a very technical word in Gita, Sthit Prajya. Sthit Prajya मतलब whose wisdom is studied, जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, स्टेबल हो चुकी है, उसको स्थित प्रज्ञा कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? सबसे पहले ये प्रश्न किसके मन में उपजा? अर्जुन के। अर्जुन कहता है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। कि स्थित प्रज्ञ, a sage of steady wisdom, एक ऐसा योगी जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, मतलब वो कैसे कंडक्ट करता है सब चीजों को, उसका व्यवहार क्या रहता है। एंड द सेज ऑफ स्टडी विजडम, हाउ स्पीक्स, हाउ सिट्स, हाउ वॉक्स, वो कैसे चलता है, कैसे सोता है, कैसे उठता है, बैठता है, कैसे उसके अंदर व्यवहारिक बदलाव आते हैं, वो सब वो जानना चाहता है। सो श्री कृष्णा सेज प्रजहाति यदा कामान
सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. There are 4 types of yogas in Gita. 4 types of yogas. Maybe you all know. Jnana Yoga, Karma Yoga, Dhyana Yoga and Bhakti Yoga. So this verse is related to Karma Yoga because we all listen that Nishkam bhav se karm karna hai. What is Nishkamita? Without desires, without any attachment, we should work. Yes. So prajahati yada kaman, the extreme level of karma yoga. When a person is entering in the karma yoga, then there is desires come and no come, attachment होता है नहीं होता है चलता है. लेकिन जो हायर लेवल है कर्म योग का, वहां पे सारी कामनाएं ध्वस्त हो जाती हैं. यानी कि जो कर्म योगी होता है वो आत्मन्यव तुष्ट हो जाता है. आत्मन्यवात्मना तुष्ट है. उसे किससे कोई वैर नहीं होता, उसको खुद के लिए कुछ चाहना नहीं होती है. तो कंप्लीटली ही इज डिवोटेड टू सुप्रीम पावर, यस इटसेल्फ. सेल्फ यानी आत्मा. आत्मा शब्द दो के लिए आता है, आत्मा के लिए भी परमात्मा के लिए भी. तो जो अद्वैत का भाव है यहाँ पर वो हमें गीता में देखने को मिलता है कि आत्मा परमात्मा का जो मिलन हो जाता है. क्योंकि कोई भी योग हो, आजकल हम बहुत सारे योग देखते हैं जिसमें हम हठ योग देखते हैं, ज्ञान योग, राज योग, मंत्र योग, लय योग, सहज योग, अभी नए नए योगों का उद्भव हो रहा है. तो जितने भी योग हैं सबका एक ही मोटो है, लिबरेशन, मुक्ति, निर्वाण. सो जब एक स्टडीड विजडम जब अटेन्स सेरेनिटी, जब वो उसको सेरेनिटी को, शांति को, कामनेस को प्राप्त करता है तो उसको उसी में ही सबसे बड़ा सुख दिखाई देता है. तो उसकी सभी कामनाएं क्या हो जाती हैं, मिट जाती हैं. तो श्री कृष्ण कहते हैं, ओ पार्थ, when one gives up all desires of head and heart and is pleased with the आत्मा, मतलब self, the self itself, he is spoken a steadfast wise person. The sum total of all pleasures of the world will seem worthless for the sake of steady wisdom who is satisfied in the self. So it was very beautiful verse, and there was the extreme level of higher position of a karma yogi. और in the next verse we say, दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते. दुःखेषु, in sorrows, in adversity, अनुद्विग्न मनः, of unsunken mind, मतलब बिना किसी लालसा के, कोई उसको दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है. दुख आ रहे हैं पर उस दुख ने उसको छुआ नहीं है. He is untouched. तो he who is unperturbed by grief. And sukheshu vigata spriha, he who is not affected by happiness also. Vitaraga bhaya krodha, he has no fear, he has no attachment, he has no anger also. In all situations he is stable in samatva buddhi. He is equanimous person, unattached, focused and composed too. Very calmness in his heart. So free from all type of attachment, fear and anger is called steady wisdom का possess करने वाला, उसको अपने धारण करने वाला मनुष्य, योगी. So the sage is steeped in steadfast knowledge and he is muni. असेज, वो मुनि कहा जाता है जो कि दुख में, सुख में, समस्त प्रकार की स्थितियों में समत्व में जीता है, समत्व को प्राप्त करता है, और वही मुनि भी कहलाता है. इन द नेक्स्ट वर्स, यदा संघरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. There is a very beautiful example of turtle. We all know that when any attack comes, जब उसके ऊपर कुछ अटैक होता है तो वो अपनी शैल में अपने लिम्स को विड्रॉ कर लेता है. ठीक वैसे ही एक योगी जब उसके सामने भोग आते हैं तो वो खुद को, अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को उन ऑब्जेक्ट्स से
विड्रॉ कर लेता है, उनको खींच लेता है। तो जैसे एक टर्टल खुद का प्रोटेक्शन करता है क्योंकि उसको पता है वो कैसे सेफ रह सकता है, ऐसे ही एक योगी को भी सचेत रहना चाहिए जब उसके सामने सांसारिक भोग आए, वैभव विलास आए, तो कैसे वो खुद को प्रोटेक्ट करे, कैसे संयमी बना रहे, इन अ रेस्ट्रेंट पोजिशन, इन अ कंट्रोल फॉर्म, वेल बैलेंस्ड। तो यही इस वर्स का जो मीनिंग है वो यही कहता है कि जैसे एक टर्टल खुद को प्रोटेक्ट करता है, ऐसे ही जो योगी सेंसेस को उनके ऑब्जेक्ट्स से विड्रॉ कर लेता है, उसकी जो विजडम है वो भी क्या हो जाती है, स्टडी हो जाती है, वो भी स्थिर हो जाती है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ते प्रसभं मनः। तो हु इज प्रैक्टिसिंग योगा, ठीक है, बट देन ऑल्सो उसका मतलब डाउनफॉल्स हो रहे हैं, वो बार बार नीचे जा रहा है अपनी स्थिति से। अप्स एंड डाउन्स बोथ आर पॉसिबल फॉर अ योगी टू, मतलब एक योगी के लिए भी ऊपर उठना नीचे जाना क्वाइट पॉसिबल है। तो उसी के बारे में उसको सचेत कर रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को, दैट यततः ह्यपि, मतलब जो स्ट्राइविंग टू कंट्रोल हिमसेल्फ, the turbulent senses violently snatch away the mind of a wise man। तो यहाँ पर हमें चेतावनी दी जा रही है कि ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि हम पथभ्रष्ट भी हो सकते हैं, हम योग की स्थिति में ऊपर जाकर नीचे भी आ सकते हैं। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल, हमें बहुत सचेत रहना होगा। और इसीलिए अभ्यास की जो बात कही है योग दर्शन में भी कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, जो फ्लक्चुएशंस हैं हमारे माइंड के, उनको कंट्रोल करने के लिए हमें अभ्यास की जरूरत होती है, हमें वैराग्य के भाव को दृढ़ करना पड़ता है। तो यही कहा है कि प्रमाथीनि इंद्रियाणि, जो ये हमारी टर्बुलेंट सेंसेस हैं वो उसको अपनी ओर खींचेंगी, उसको सही योग की जो स्थिति है उसको प्राप्त करने से पीछे हटाएंगी, पर हमें सावधान रहना होगा। तो उसी का समाधान कहते हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि, तानि इज अ प्रोनाउन जो किसकी ओर जाता है, इंद्रियों की ओर जाता है, कि इंद्रियों को संयमित करके, कंट्रोलिंग ऑल ऑफ देम, सेंसेस एंड सेंसेस फ्रॉम देयर ऑब्जेक्ट्स, युक्त आसीत मत परह। जब एक योगी खुद को संयमित करता है, खुद को कंट्रोल करता है, तो उसको लगता है मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, तो एक अभिमान का भाव उसमें आ जाता है। लेकिन कृष्णा सेज आसीत मत परह, मत परह, मेरे परायण होकर, मतलब ये जो स्थिति एक योगी प्राप्त कर रहा है उसको सोचना चाहिए कि वो भगवत कृपा से ही प्राप्त हो रही है, इसलिए यहाँ पर मत परह शब्द आया है। मतलब ये बहुत ही सोच समझ कर के यहाँ पर दिया गया ताकि एक योगी अभिमान से मुक्त हो सके और वो जितना भी अभ्यास कर रहा है उसको वो परमात्मा की कृपा के कारण ही प्राप्त हुआ है ऐसा सोच सके, समझ सके। और एक मंत्र भी आता है ना, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम। ब्रह्मवर्चसम जो ब्रह्म तेज, जो वैराग्य की स्थिति हमने प्राप्त की है, उसको भी मह्यम दत्वा, यानी कि उस परम सत्ता को देकर के, उस एक्सट्रीम हाईएस्ट जो पावर है उसको सौंप करके, उसी का मान करके व्रजत ब्रह्मलोकम, जो मोक्ष का धाम है, उसको प्राप्त हो जा। और यहीं पर उस बात को पुष्ट किया है कि मत परह आसीत युक्त, कि मेरे ही परायण होकर के वो व्यवहार करे। वशे ही यस्य इंद्रियाणि, इसलिए जिसकी सेंसेस उसके वश में रहती हैं, उसके कंट्रोल में रहती हैं, वो भी स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा भी क्या कहलाती है, स्टीड फास्ट कहलाती है। यहाँ पर जो ये श्लोक है बहुत ही फेमस ये श्लोक है और इनको बार बार कोट भी किया जाता है। ये एक स्थिति को बताते हैं कि कैसे हमारे मन में
टर्मोइल्स उठती हैं, कैसे हमारे मन में फ्लक्चुएशंस होते हैं, उनके पीछे कौन कौन से विकार काम करते हैं। तो दीज ऑल आर टेम्परामेंट्स, और ये सभी हमें अलग अलग स्थिति में लेके जाने वाले होते हैं, और इन टेम्परामेंट्स के कारण अंततः क्या होता है, हम समाप्त हो जाते हैं, वी पेरिश्ड। So there is a very beautiful narration that ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान् पुंसः, जब कोई मनुष्य बार बार विषयों का चिंतन करता है, हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। योग दर्शन में कहा है कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां, मतलब अच्छे और बुरे विचार दोनों हमारे माइंड में आते हैं। तो जब हम अच्छे विचारों के प्रवाह में होते हैं तो हम पुण्य कर्म कर रहे होते, अच्छे कर्म कर रहे होते हैं, और जब हम बुरे विचारों के प्रवाह में आते हैं तो बुरे कर्म कर रहे होते हैं। तो when a man thinks of the sensual objects, जब वो विषय भोगों के बारे में सोचता है तो क्या होता है, जब हम किसी के भी बारे में बार बार सोचते हैं तो अटैचमेंट हो ही जाता है।